Hello students, here is your lesson number 4, materials, metals and non-metals. Question answers I am going to explain you today. So this is your question number 1. Which of the following can be beaten into the thin sheets? Zinc, phosphorus, sulfur, oxygen. So zinc is a metal and it has malleability. Means zinc is ऐसा metal है जो कि malleability है, उसमें malleability है. Now which of the following statements is correct? All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally metals are ductile. Some non-metals are ductile. So generally metals are ductile. So this is a fill in the blanks. Phosphorus is a very reactive non-metal. Metals are dash conductors of heat and dash. So metals are good conductors of heat and electricity. Metals जो है वो heat के good conductor है और electricity के. Now here is iron is reactive than copper. Iron is more reactive than copper. Metals react with acids to produce dash gas. Metals react with acids to produce hydrogen gas. Now here is your next question. Mark T with if the statement is true and mark F if the statement is false. Generally non-metals react with acids. False. Sodium is a very reactive metal. True. Sodium जो है वो reactive metal है. Copper displaces zinc from zinc sulfate solution. False. Copper displace नहीं करता है. Coal can be drawn into wires. False. Coal को हम wires में convert नहीं कर सकते. So some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. So ऐसी कुछ properties यहाँ दिए हुए हैं. Properties metals and non-metals. So appearance metals lustrous, non-metals non-lustrous and except diamond. Non-metals में diamond को छोड़ के दूसरे सारे metals जो है वो non-lustrous है. Hardness metals hard exception sodium, potassium and lead. सोडियम पोटेशियम और लीड को एक्सेप्ट करके दूसरे सारे मेटल्स जो है वो हार्ड है. जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. जनरली सारे सॉफ्ट है डायमंड को छोड़ के क्योंकि डायमंड हार्ड है. मेलेबिलिटी जनरली मेलेबल. जनरली जो है मेलेबल है और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल है. डक्टिलिटी जनरली डक्टाइल. नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल. हीट कंडक्शन metals are good conductors. Non-metals are poor conductors. Conduction of electricity good conductors. Non-metals are poor conductors exception of graphite. Now here is the next question. Give reasons for the following. Aluminum foils are used to wrap food items. एल्यूमिनियम फॉयल जो है हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज करते हैं. एल्यूमिनियम इज मेलेबल सॉफ्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स. एल्यूमिनियम जो है मेलेबल है सॉफ्ट है और फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता. सो इट इज यूज टू रैप फूड आइटम्स और इसीलिए हम उसे फूड आइटम्स को रैप करने में यूज करते हैं. Immersion rods of heating liquids are made up of metallic substances. Metals are good conductors of heat. So immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. Metals जो है वो good conductor of heat है और immersion of rods जो है वो heating liquids are made up of metallic substance और heating liquids जो है वो metallic substance से बनता है. So here कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है सॉल्ट सॉल्यूशन में से. सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से. इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. दे रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर बट कैन नॉट रिएक्ट विथ केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम जो है वो रिएक्टिव मेटल्स है. वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ एंड वाटर बट कैन नॉट रिएक्ट विथ कैरोसिन. वो कैरोसिन से रिएक्ट नहीं करते. बोथ मेटल्स आर हैवियर देन कैरोसिन सो दे सिंक इन कैरोसिन. सारे जो दोनों मेटल्स है वो हैवियर है कैरोसिन देन कैरोसिन सो दे सिंक इन कैरोसिन. सो सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन और सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? नो वी कैन नॉट. We cannot store the lemon pickle in an aluminum utensil because aluminum is a metal and lemon contains acids. Citric acids react with metals to give hydrogen gas which would spoil the food and make it unfit for consumption.
हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसमें साइट्रिक एसिड होता है और एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल से और हाइड्रोजन गैस टू गिव हाइड्रोजन गैस विच वुड स्पॉइल द फूड एंड मेक इट अनफिट फॉर कंजप्शन, और वो फूड को स्पॉइल कर देता है और कंजप्शन को वो हम ज़्यादा टाइम तक उसे कंजप्शन नहीं कर सकते। मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। गोल्ड फॉर ज्वेलरी, आयरन for machinery, aluminium for wrapping food, carbon for fuel, mercury for thermometers. Now what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम उसे कॉपर प्लेट पे पॉर करेंगे तो क्या होगा? व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर रिएक्ट विथ एसिड टू गिव कॉपर। कॉपर जो है वो रिएक्ट करेगा एसिड से, गिव कॉपर सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वो सल्फर डाइऑक्साइड देगा और कॉपर सल्फेट देगा। सो कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, Cu plus 2H2SO4 gives CuSO4 SO2 plus 2H2O. Now here iron nails are placed in a copper sulfate solution. Write word equations of the reactions involved. When iron nails are placed in copper sulfate solution, displacement reactions take place in which iron displaces copper. और आयरन नेल्स को हम कॉपर प्लेट सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम पुट करेंगे तो वो रिएक्शन डिस्प्लेस होगी और आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। द ब्लू कलर टर्न्स इनटू ग्रीन, और जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सम आयरन नील्स टर्न्स इन रेड इन कलर, और कुछ आयरन नील्स जो है वो रेड कलर में टर्न हो जाएगी। नेल्स ऑफ आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu. Now Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in the test tube. How will she find the nature of the gas? Write down the word equations of all the reactions taking place in this process. Saloni can find the nature of the gas by adding few drops of water in the test tube and testing the solution with red and blue litmus paper. The blue litmus paper will turn red while the red litmus paper will show no change. This shows that the gas is acidic in nature. Saloni जो है वो कैन फाइंड द नेचर ऑफ द गैस बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वो नेचर गैस में कुछ वाटर ड्रॉप्स उसमें ऐड करती है। द टेस्ट ट्यूब एंड टेस्टिंग द सॉल्यूशन विद रेड लिटमस पेपर, और उसे टेस्ट करती है रेड लिटमस पेपर से, ब्लू लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस पेपर जो है विल टर्न रेड, और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। दिस शोज दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर, और ये शो करता है कि जो गैस है वो एसिडिक इन नेचर है। चारकोल प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोनिक एसिड। One day Rita went to a jeweler shop with her mother. Her mother gave an old jewelry to the goldsmith polish. एक दिन रीटा जो है अपनी मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप में जाती है और वो गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए अपनी ज्वेलरी देते हैं, पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, और नेक्स्ट डे जब वो अपनी ज्वेलरी वापस लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्लाइट लॉस होता है वेट में। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट? गोल्ड इज केमिकली इनर्ट, गोल्ड जो है वो केमिकल इनर्ट है। टू मेक गोल्ड ज्वेलरी सम अमाउंट ऑफ कॉपर इज एडेड। गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा कॉपर ऐड करते हैं, बिकॉज गोल्ड इज सॉफ्ट मेटल, और गोल्ड जो है वो सॉफ्ट इन मेटल होता है। इन अ गोल्ड ज्वेलरी और 22 कैरेट देयर इज अ 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट ऑफ कॉपर। 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स जो होते हैं वो गोल्ड के होते हैं, 2 पार्ट ऑफ कॉपर। आफ्टर लॉन्ग टाइम कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, दैट इज वाई गोल्ड बिकम्स डल, और इसीलिए गोल्ड जो है वो डल हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग द डल लेयर इज रिमूव, और पॉलिशिंग करने के बाद जो डल लेयर है वो रिमूव हो जाती है। दिस कॉसेज द लॉस ऑफ वेट इन द ज्वेलरी, और इसी वजह से गोल्ड ज्वेलरी में थोड़ा सा वेट लॉस हो जाता है। सो हियर इज अ लेसन नंबर 4 क्वेश्चन आंसर्स इज फिनिश्ड, explanation is finished. In the next part we are going to start our new lesson, lesson number 5, coal and petroleum.